Hi guys, it's Divya and welcome back to my channel. Welcome to another video. Now, NIFT results are out. So, जिन्होंने for students who have attempted, like who sat for NIFT this year, results are out. You might already know that. And for people who are shortlisted for round 2, congratulations to you guys. और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं. NIFT is not the end of your journey. You can try one more time, or you can apply for, like, you can go for some other college. For someone who doesn't know exactly कि situation test होता क्या है, situation test is basically 2 hours exam that is conducted in NIFT centers only, and you have to make a model out of the materials they provide you. So the materials can be cardboard, colored paper, OHP sheet, clay, straw, wooden sticks, wire, cloth, etc. And you are allowed to take your own items, like own tools like glue, scissors, cutters, fevistick, fevikwik, tape, etc. Now let's talk about कि मुझे ये वीडियो में क्या कवर करना है and why am I making this video. So because situation test is going to come very soon, like it will be conducted around first week of April, not first week, but it can happen in April anytime. So the thing is, आपको 10 दिन, सिर्फ 10 दिन भी मिल सकते हैं तैयारी करने के लिए, और आपको इवन 1 महीना भी मिल सकता है. तो यू नीड टू डिसाइड एंड यू नीड टू मेक श्योर कि कैसे क्या होने वाला है. नाउ द रिजल्ट्स आर आउट, सो वो बहुत जल्द दे विल अनाउंस द डेट्स ऑल्सो. एंड आई एम होपिंग कि यू गाइज हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर सिचुएशन टेस्ट ऑलरेडी, बिकॉज ट्रस्ट मी, कितना भी तुम सोच लो कि सिचुएशन टेस्ट 20% वेटेज ही रखता है, बट इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर रैंक. बिकॉज व्हेन आई वाज इन, लाइक व्हेन आई गेव माई निफ्ट एग्जाम, आई थिंक जो मेरा रैंक बूस्ट हुआ है दैट वाज बिकॉज ऑफ सिचुएशन टेस्ट, क्योंकि आई एम वेरी गुड विथ मटेरियल हैंडलिंग. सो आई थिंक मेरा गैट उतना अच्छा नहीं गया था, बट मेरा कैट पार्ट वॉज वेरी नाइस. So I think CAT and situation test together have, like, जो उसका combine जो marks आए हैं उसके वही reason है कि मेरा अच्छा rank आया है and I got into my desired department. Okay, so the very first tip is start handling materials. So you should know कि cardboard कैसे काम करता है, OHP sheet कैसे काम करती है. Like when you work with them ना, तब आपको समझ में आएगा. So the very first thing is try making a lot of models. वो तो obviously आप करोगे तैयारी में, लेकिन I would suggest trying out different glue and different techniques so that you know कि कौन सी चीज़ कैसे चिपकती है. For example, OHP sheet आपको समझ में नहीं आएगा कि, मतलब you may have this doubt कि OHP sheet को कैसे stick करना है. So that's when you can try Fevikwik, you can try staplers, you can try Fevicol, you can try Fevibond. बहुत सारी चीज़ें होती है. तो start practicing things like how to stick things, because ये बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप मॉडल बनाते हो ना. तो मॉडल बनने, आपके दिमाग में जो भी आइडिया रहता है वो तो रहता है, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आपको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कैसे चिपकेगी. सो कार्डबोर्ड से OHP शीट कैसे चिपकेगी वो आप जब ट्राई करोगे तब समझ में आएगा. सो आई वुड सजेस्ट हैंडल अ लॉट ऑफ मटेरियल्स. सेकेंड थिंग इज़ मैनेज योर टाइम वेरी वाइसली, क्योंकि 2 घंटे में आपको मटेरियल्स पूरे आपको पहले तो आइडिएशन करना पड़ेगा. नाउ आई वुड सजेस्ट कि आइडिएशन के लिए 10 मिनट्स इज़ मैक्स, लाइक मैक्सिमम 10 मिनट्स, जब आपका आइडिएशन अच्छे से हो जाएगा. क्योंकि ट्रस्ट मी, 2 hours इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू मेक अ मॉडल, बट हमें दे एक्सपेक्ट अस टू मेक इट. सो आपको बहुत ज़्यादा पहले तो आप प्रैक्टिस कर लो बहुत सारे मटेरियल्स हैंडल करने की, मॉडल्स बनाने की, ईच टाइप ऑफ मॉडल सब बना के देख लो, और उसके बाद try managing your time. You have to also do a write-up, so keep that in mind. Third is, if you don't have enough time to prepare, for example people who have like exams अभी अगर चल रहे हैं, या फिर for some reason अगर आपका तैयारी नहीं हो पाती है,
try to ideate as much as questions you can. So go through previous year questions, क्योंकि mostly उससे related चीज़ें आती है. So go through previous year questions and try ideating it. So you can just write down the idea or you can make a rough sketch. So you can decide कि मैं अगर अब मुझे ये materials मिले हैं तो मैं कौन सा मटेरियल किस जगह यूज़ करूँगा, कौन सा मैं कार्डबोर्ड प्लेटफॉर्म पे कौन सा मटेरियल मैं प्लेटफॉर्म पे रखूँगा, कौन सा मटेरियल का मेरा बॉडी होगा, कौन से मटेरियल से मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करूँगा, वो सब आपको याद समझ में आनी चाहिए. जब तक एग्ज़ाम नहीं हुई है तब तक सिर्फ आइडियाज़ सोचो और उसको नोट डाउन करो, स्केच कर लो, सो दैट यू नो आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भले मैंने तैयारी मैंने मॉडल नहीं बना के देखा लेकिन मैंने एटलीस्ट ट्राई कर ली है चीज़ें. क्विक एंड ईजी टेक्निक्स ढूंढो जिससे आपका मटेरियल भी यूज़ हो जाए और आप अपने मॉडल को अच्छा भी दिखा दो. इफ़ यू नो इस बार निफ्ट की एग्ज़ाम एनटीए ने कंडक्ट की है. यू विल हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी. So I would suggest you to add things like some functional elements in your models. For example, अगर आप कोई space बना रहे हो if you are making a classroom, so if you are making a bench in that, so try adding a little drawer that opens up. तो उसका आप write up लिखो. So because आप बना तो दोगे और जो एग्जामिनर है जो आपको मार्क्स देने वाला है उसे पता ही नहीं है कि वो फंक्शनैलिटी है मॉडल में, तो उसे नहीं पता चलेगा. तो यू विल हैव टू राइट इट डाउन इन योर राइटअप एंड डू इट वेरी वाइजली. राइटअप वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर पैराग्राफ लिख दोगे ना तो कोई नहीं पढ़ता है उतना. सो यू विल हैव टू राइट थिंग्स इन पॉइंटर्स. सो इफ़ यू हैव मेंशन्ड सम फंक्शनैलिटीज, मेक अ हेडिंग एंड राइट डाउन द थिंग्स दैट आर इन योर मॉडल जो फंक्शनल है. एंड ऑल्सो डोंट फोकस मोर ऑन द डेकोरेशन पार्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ट्रॉफ़ी बनाने बोला है तो सबसे पहले मेक योर बेस एंड योर बॉडी. वो बनाने के बाद आखिरी में अगर टाइम बच रहा है, जो कि आपको बचाना पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर नहीं बचता है बाय एनी चांस तो तब आप वो छोड़ सकते हो, डेकोरेशन वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो. बट आपका मेन जो चीज़ है ना, प्लेटफॉर्म विद द बॉडी, वो रेडी होना चाहिए. सो यू शुड कीप दैट इन माइंड. एंड आई वुड नॉट सजेस्ट कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लो क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू मेक अ मॉडल और वो ईजी नहीं होता है. दिस इज़ अ 3D एग्जाम. दे आर गोइंग टू टेस्ट योर मटेरियल हैंडलिंग स्किल्स. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर नॉट गुड विथ OHP शीट्स, आई वुड सजेस्ट कि उसको बहुत कम क्वान्टिटी में यूज़ करो. अगर आपको नहीं पता है, इट इज़ इस चीज़ पे मार्किंग है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मटेरियल you will use in your exam. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको एक पूरी OHP शीट दे रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा उससे यूज़. आप छोड़ नहीं सकते. एटलीस्ट यूज़ जस्ट छोटा सा, एक शीट में से इतना सा पार्ट यूज़ कर लो, लेकिन यूज़ करो. उसके भी मार्क्स होते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो. एंड आई थिंक दैट्स वही keep preparing, keep practicing. And I think that's it for this video. I would like to add one more thing. इसके बाद I am going to upload a video जिसमें मैंने अपने सारे प्रिपरेशन सिचुएशन टेस्ट के लिए जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी, सारे मॉडल्स का मैंने वीडियो बनाया है. सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर पीपल जिन्हें सिचुएशन टेस्ट देना है. एंड I hope you found this video helpful, and if you did, please subscribe to my channel